Good morning. I'm Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, from today, the third phase of lockdown has started, and the country could achieve lot of success in first two rounds of lockdown. If we look at the overall scenario, on one side, it seems that number of cases are still increasing. But if we look at the real data, now our country has done more than 10 lakh testing. And out of this 10 lakh testing, say 42,000 are active cases. It comes to 4%. That means 4% out of 100 persons, those were tested, were positive as far as coronavirus is concerned. So positive side is 96 people are not positive. And that is encouraging the government to phase out the lockdown in phases. From today, they have divided the entire country into three parts: red zone, orange, and green. And in green zone, lot of activities are started. Then in orange, still lesser than green zone activities are started. And in red zone, most of the activities are restricted. So, what is the way forward? On one side, the vaccine testing is becoming successful. On other side, some drugs are being found to treat. On third side, as country is now divided into various zones, an endeavor will be there in this country that during these 15 days of lockdown, the number of red zone cases should be reduced, number of orange zone cases be converted into green zone cases, so that gradually the confinement of these cases to few areas is achieved. And once that is achieved, it will be easier to treat the disease and move forward. Because it is for sure that it will be very difficult to achieve zero virus infected cases. But if those cases goes on reducing in percentage terms to the total testing, because still testing has to scale up, that means country is able to contain the spread of this virus. So with few precautions, the country can move ahead. As that seems to be planning, because now you find so many started students, tourists, migrant laborers are moving under a very secured environment from one city to another. If we look 20 days ago, there were little movement, but gradually movement is being permitted in a very, you can say, systematic manner. So we have a hope. The government is hopeful, various agencies are hopeful that by 31st May, this scenario will be totally different than what is today. And if that happens, that will bring us a good news. Then thereafter, the notification may start coming, or the dates of examination may be announced by various boards, because now board examination of 10th and 12th is pending. Then examination by SSC are pending. Then exam by RBI and SBI is pending. Then university exams are pending. So everybody is working how to conduct the exam, when environment will be friendly to conduct the exams. So exams will be conducted. When it is only question mark. So remain hopeful, concentrate on our studies, because in our hand we have only one thing: to study, study and study. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब अगर हम अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं चारों तरफ, तो आज हमारा लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो गया. पहला लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त था, दूसरे में कुछ सुविधाएं मिली, और आज देश इस हालत में है कि अपने को 3 हिस्सों में बांट पा रहा है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन. ग्रीन जोन मीन्स अधिकतर एक्टिविटीज परमिट हो रही है. ऑरेंज में कुछ कम एक्टिविटीज परमिट हो रही है.
ग्रीन के मुकाबले, और रेड जोन में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आज कंट्री ने 10 लाख टेस्टिंग पूरी कर ली है, 42,000 के करीब एक्टिव केसेज हैं, मीन्स 4%, जो कि पूरे वर्ल्ड में जहां भी हम आंकड़े देख रहे हैं उसके मुकाबले बहुत कम है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर अभी भी इसको हम एक कंट्रोल में मानेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो लगातार जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस विसे विस टेस्टेड, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, डिक्लाइनिंग है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है इसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे अधिक टेस्टिंग होगी केसेस तो उसमें निकल के आएंगे। अगर हम कह रहे हैं आज 4% है, तो अगर एक दिन में 50,000 टेस्ट करते हैं तो 2,000 आएंगे, और अगर 1 लाख करेंगे तो 4,000 लोग आएंगे। तो नेचुरल है कि अगर वो सेम परसेंटेज भी निकल के आता है तो ज़्यादा टेस्टिंग मीन्स ज़्यादा एक्टिव केस। तो जहां एक तरफ देश टेस्टिंग बढ़ा रहा है, वहां ये भी आ रहा है कि जो परसेंटेज का आंकड़ा है वो गिरता जा रहा है, मीन्स जो स्प्रेड है वो लिमिट होता जा रहा है, और इसीलिए 3 जोन में देश अपने को डिवाइड करने में कामयाब हो रहा है। और आगे आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि जो रेड जोन के एरियाज हैं और कम हो जाएं। तो यही इसकी एक सिल्वर लाइनिंग है। दूसरी तरफ वैक्सीन की भी टेस्टिंग ठीक चल रही है, मेडिसिन भी तैयार हो रही हैं, लोग ठीक होके घर भी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, डेथ रेट भी अगर हम और देशों से मुकाबला करते हैं तो अभी इंडिया में कम ही है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक आशा की किरण हमारे अंदर दिखाते हैं। डार्कनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आशा भी है इसके अंदर। अब आप देखेंगे कितने एग्ज़ाम हमारे पेंडिंग है, 10वीं का एग्ज़ाम पेंडिंग है, 12वीं का एग्ज़ाम पेंडिंग है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेंडिंग है, SBI का एग्ज़ाम पेंडिंग है, RBI का एग्ज़ाम पेंडिंग है। ये सारी एजेंसी पूरी कोशिश कर रही हैं कि एग्ज़ाम कैसे कराया जाए, इस पे विचार विमर्श कर रही हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बना रही है। पर मेरा मानना ये है कि 31 मई तक आते आते जो देश की स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट होएगी, काफ़ी इम्प्रूव्ड होएगी आज के मुकाबले। हर दिन कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है हमारा देश। तो यदि 31 मई तक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है तो हम होप कर सकते हैं कि हमारी डेट्स अनाउंस होनी शुरू हो जाए। तो इसलिए तब तक हमें पढ़ाई करते रहना है। कोई ऐसा नहीं है ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए चीज़ें डेफर हो गई हैं, कभी ना कभी इसके अंदर सोल्यूशन निकलेगा, और उसकी तरफ सारी एजेंसीज लगी हुई हैं। क्योंकि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम तो होगा ही, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी होगा, और कंपटीशंस भी होंगे, ये तो होना ही है। अब आप देखें कितना चेंज है। अगर हम लास्ट मंथ के लॉकडाउन से देखें तो किसी की भी मूवमेंट परमिटेड नहीं थी। अब क्या है, माइग्रेंट लेबर्स की मूवमेंट हो गई इस हफ्ते के अंदर, रोज 10 से 12 ट्रेन लोगों को लेके जा रही है, बसों से भी लोग जा रहे हैं। जो छात्र फंसे हुए थे वो भी अपने घर पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं, जो टूरिस्ट फंसे हुए थे वो भी अपने घरों में पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम सीख रहे हैं कि कैसे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मूवमेंट अलाउ किया जा सकता है, और वो अलाउ किया जा रहा है। और जैसे ही ये साधन आ जाएंगे रेलवे के, बस के, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने भी आसान हो जाएंगे। पर जो डायरेक्शन है, अगर हम ओवरऑल देखते हैं, निराशा चारों तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसमें आशा भी है। बहुत चीज़ों में सफलता भी देश को मिल रही है, लोग अच्छी तरह ठीक होके भी घर जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो रिकवरी परसेंटेज है वो डेली बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है। अगर आज से कुछ दिन पहले ये मान लीजिए 20% से नीचे थी, तो आज ये धीरे धीरे जंप करते करते 25, 26, 27 ऐसे परसेंटेज में बढ़ती जा रही है। अगर डेली एडिशन भी आप देखें तो आप देखेंगे कि अगर मान लो 2400 केस ऐड हुए तो 900 केस रिकवर्ड भी हुए हैं, मोर देन 30%। तो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर ऑफ केसेस तो इजाफा नजर आएगा, पर अगर वो परसेंटेज टर्म्स में कम है तो दैट मीन्स कंट्रोल में है। अगर हर 100 में से आज मान लो 4 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, और आने वाले वक्त के अंदर देश इसको 2 पे ले आता है या 1 पे ले आता है, मीन्स हर 100 व्यक्ति में सिर्फ 1 व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुल सकती हैं। अब आज कितने शहरों में कितनी एक्टिविटीज़ खुल जाएंगी, तो आशा है और आशावान रहना है।
हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है। निराशा है चारों तरफ, अंधेरा है, गुप अंधेरा है, पर इसमें हमें रोशनी की तलाश करनी है, हमें आगे बढ़ना है। ये जो वक्त है ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ ही दिनों में इसमें परिवर्तन आएगा। 31 मई तक मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। बाकी ईश्वर है, हमारी आस्था है उसके ऊपर, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।